Students, the purpose of this lecture is to understand a very famous theorem in econometrics that is named Frisch-Waugh-Lowell's theorem. So the basic idea of this particular theorem or the concept was given in this paper by Ragnar Frisch and Frederick Waugh. Actually, Ragnar Frisch is one of the most famous econometricians or economists who was given first Nobel Prize in economics, and along with Tinbergen he was given the first Nobel Prize, and they laid the foundation of the journal Econometrica, gave the definition of econometrics, and you can consider Ragnar Frisch along with Tinbergen as the founding fathers of econometrics discipline. ठीक है, so let's proceed with what is Frisch-Waugh-Lowell's theorem. ठीक है, तो उसको समझने से पहले let's consider the basic idea behind the theorem, then we will consider how they came up with this idea in this particular research paper. तो सबसे पहले let's see a fitted regression model in which there are two variables. So y hat is fitted value of y, beta naught hat plus beta 1 hat x1 plus beta 2 hat x2. ठीक है, अगर इसका हम चेंज्ड वर्जन कैलकुलेट करें तो देन वी हैव डेल्टा वाई हैट इज इक्वल टू बीटा 1 हैट डेल्टा x1 प्लस बीटा 2 हैट डेल्टा x2. ठीक है, व्हेन डेल्टा x2 इज़ हेल्ड फिक्स्ड. ठीक है, जब आप ये कहो कि x2 सपोज करो कि यू वांट टू evaluate, you want to see the interpretation of beta 2 hat, then you can hold x2 as fixed or x1 as fixed, or if you want to see the interpretation of beta 1 hat, then you can keep x2 as fixed. So if x2 is kept fixed, then delta x2 is equal to 0. Then we have by putting delta x2 equal to 0, we get this, and if we simplify it further, then we get this is the definition of beta 1 hat, that is delta y over delta x1. Similarly, we can arrive at beta 2 hat is equal to delta y hat over delta x2, and we can extend this to a k variable model in which there are k variables. Suppose if you take the difference, then you can arrive at similar interpretation, and you can note it down if you wish to. That is, the coefficient on x1 measures the change in y hat due to 1 unit increase in x1, holding all other independent variables fixed. That is, delta y hat is equal to beta 1 hat into delta x1, holding x2, x3, so on up to xk as fixed. Thus, we have control for variables x1, x2, xk when estimating the effect of x1 on y. The other coefficients have a similar interpretation. आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हो कि सपोज we differentiate this with respect to x1, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y hat डेल्टा x1 is equal to beta 1 hat. ठीक है, तो continuous terms में this the beta 1 hat and beta 2 hat has these interpretations. ठीक है, x1 as fixed. ठीक है, यहाँ पे x2 as fixed. डिस्क्रीट टर्म्स में ये इंटरप्रिटेशन बनती है और कॉन्टिन्यूस टर्म में ये इंटरप्रिटेशन. आप लोग कहोगे कि ये तो इजी वाली चीज़ थी, इसमें फ्रिश वॉ लोवेल इनका कंट्रीब्यूशन क्या है. नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट देयर कंट्रीब्यूशन इज़. ठीक है, तो उनका आइडिया देखने से पहले लेट्स सी दिस पर्टिकुलर. तो एक सेकेंड, पार्शियल रिग्रेशंस इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, जो मैंने आइडिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखा है. इनका ये कहना था कि सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, सपोज y इज सम टाइम सीरीज डेटा एंड x वेरिएबल इज़ ऑल्सो सम टाइम सीरीज बेस्ड डेटा बेस्ड ऑन, जैसे आप ये मान सकते हो कि दिस इज़ GDP, सपोज दिस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बट इफ़ यू रिग्रेस दिस इक्वेशन डायरेक्टली, then it may produce some spurious results, because time series data में जनरली ये होता है कि if one is trending series like this and second is trending series like this, then
surely there is some correlation and you may arrive at a very significant beta, and you may conclude that xt affects yt, but these two are independently correlated series. These two series are independent but correlated, so this may lead to spurious correlation. So their idea was that rather than regressing this model, first of all let's regress this model, beta xt plus gamma trend plus epsilon. ठीक है, then you can have a better estimate of effect of xt on yt. Now the brilliance of this Frisch and Wohl's idea was that if you do this analysis and arrive at beta hat, or you can do this thing, regress yt on suppose say this suppose some model, suppose delta naught plus delta 1 trend, then arrive at detrended data or residual, that is yt hat. Okay, and secondly if you do xt, suppose we have we say this is gamma naught plus gamma 1 trend, see the fitted value, and then obtain the residual from this model, and if you run the same regression of yt hat on xt hat, then the beta will come out to be same as that given by here. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ यू रन दिस रिग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, ऑफ yt tilde, that is residual from this regression and then secondly residual from this regression. ठीक है, तो इस केस में जो स्लोप पैरामीटर आएगा सेम एज दैट ऑफ बीटा हैट. ठीक है, मैं ना इस आइडिया को एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसे ही डायरेक्टली बता दिया, बट इसे एक्सप्लेन नहीं किया. सपोज़ आपने एक चीज़, मैं ये राइट हैंड साइड पे जो रिसर्च पेपर है ना फ्रिश और वॉ का आइडिया, उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. सपोज़ यू रिग्रेस दिस अल्फ़ा नॉट, ऐसे कर लिख अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा 1 और एक्स टी प्लस ट्रेंड. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा 2 लिख देता हूँ. ठीक है, ये एक मॉडल आपने ये रन किया, इससे आपके पास एस्टीमेट आ गया अल्फ़ा 1 हैट. ठीक है, दूसरा आइडिया ये है कि यू रिग्रेस वाई टी एज सपोज से बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू ट्रेंड, देन ऑब्टेन द रेजिडुअल, दैट इज़ वाई टी हैट. ठीक है, और दूसरा आप क्या करते हो, बीटा एक्स टी को रिग्रेस करो गामा नॉट प्लस गामा 1 ट्रेंड और रेजिडुअल ऑब्टेन करो, रेजिडुअल दैट इज़ एक्स टी हैट. और अब आप एक रिग्रेशन रन करो, दिस डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा 1 एक्स टी. ठीक है, तो जो आपके पास ये डेल्टा 1 आएगा, ठीक है, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस वॉज देयर आइडिया. और एक बार रीड भी कर लेते हैं. देयर आर इन कॉमन टू यूज़ two methods of handling linear trend in correlational analysis of time series data. ठीक है, first to base the analysis on deviations from trends fitted separately to each original series, and second to base the analysis on original series without trend elimination, but instead to introduce time itself as one of the variables in a multiple correlation analysis. The first method may be called the individual trend method and the later the partial time regression method. जो हम ये पार्शियल की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसका मीनिंग यही है. ठीक है, और आगे मैंने एक जगह पे हाईलाइट किया है, द पार्शियल ट्रेंड रिग्रेशन मेथड कैन नेवर इंडीड अचीव एनीथिंग विच द इंडिविजुअल ट्रेंड मेथड कैन नॉट, बिकॉज द टू मेथड्स लीड बाय डेफिनेशन टू आइडेंटिकली द सेम रिजल्ट. ये उनका आइडिया था. ठीक है, उन्होंने एक्चुअली बेसिकली ये कहा कि आप ट्रेंड को इंक्लूड करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप डी ट्रेंडेड सीरीज़ इस तरह से ले लो, ठीक है, डी टेंडेड वाई टी को कंसिडर कर लो, या आप और डी टेंडेड एक्स टी को कंसिडर कर लो और एक रिग्रेशन ये वाला रन कर लो.
आपके पास डेल्टा 1 आ जाएगा, ठीक है। और या आप ट्रेंड को डायरेक्टली इंक्लूड कर लो, दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि जिसको मैंने फॉर्मल लैंग्वेज में आगे लिखा हुआ है कि अगर आप डेफिनेशन कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। फ्रिश वॉ लोवेस थ्योरम, इट इज़ एन econometrics, it is an econometrics result stating that in a linear regression you can isolate the effect of a specific variable by partialing out the linear influence of control variables, ठीक है। अब आप समझना, सपोज ये ट्रेंड वेरिएबल है आपका, ट्रेंड की जगह पे आपने एक जनरल वेरिएबल x2 लिख दिया है, ठीक है। अब उसमें वो क्या कह रहा है कि आप वी वांट टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ x1 वाइल कंट्रोलिंग फॉर x2, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आप ये फुल रिग्रेशन रन करने की जगह पे, ये फुल रिग्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, इसको रन करने की जगह पे आप ये कर सकते हो, पहले आप रिग्रेशन रन कर दो y की x2 पे, ठीक है, जैसे हमने डी ट्रेंड किया था, ठीक है। मतलब y की x2 पे कर दो, ठीक है, और इससे रेजिडुअल्स ऑब्टेन कर लो, ठीक है। उसी तरह x1 की x2 से कर लो और रेजिडुअल्स ऑब्टेन कर लो, एंड you will obtain the same coefficient exactly as in the full regression। और सपोज करो जैसे कि यहाँ पे तो हमने बीटा 1 को करना था, सपोज बीटा 2 को करने का क्या प्रोसीजर है कि आप पहले रिग्रेशन रन करो, ये अल्फ़ा 1 x1, ठीक है, रेजिडुअल लेके आओ, और उसके बाद x2 की रिग्रेशन रन करो x1 पे, टेक द रेजिडुअल्स and then run this regression on x2, then you will get something as same as beta 2 hat, ठीक है। मैंने क्लास में भी कहा था कि दिस फ्रिश एंड वॉ दे वुडेंट हैव थॉट एट दैट टाइम कि उनका मेथड जनरलाइज करने के लिए काम आ जाएगा, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है उनका पार्शियल इफेक्ट एक्सप्लेन करने के, बिकॉज दे थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स डेटा विच इज़ जनरली इन लाइक सपोज से इन टाइम सीरीज टर्म्स। तो उन्होंने कहा कि ट्रेंड को इस तरह से इंक्लूड कर लो या इस तरह से इंक्लूड कर लो, बट दे नेवर न्यू कि हम वेरिएबल के पहले ट्रेंड का इफेक्ट यहाँ से हटाया, सपोज ट्रेंड की जगह पे ये x2 है और यहाँ पे ये x2 है और ये x1 है, ठीक है। x2 का इफेक्ट y से हटाया, x2 का इफेक्ट x1 से हटाया, और जो हटाए हुए या रेजिडुअल्स हैं उसको जब हमने रिग्रेस किया वी ऑब्टेन्ड what that's then final thing that is beta 1। इस केस में मैंने डेल्टा 1 लिखा है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बट आई गेस बेसिक आइडिया आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप इसके ये स्टेप्स लिखना चाहो लिख सकते हो, और इसको सेम टर्म्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फॉर मोर देन वन वेरिएबल, जैसे मैंने ये लिखा है मॉडल विद मल्टीपल कंट्रोल्स, वी वॉन्ट द कोफिशिएंट ऑफ x1 कंट्रोलिंग फॉर, हम बीटा 1 चाहते हैं। एक तो रेगनर फ्रिश के स्टाइल में कहेंगे कि आइदर यू कैन रन द फुल मॉडल, या तो फुल मॉडल रन कर लो। नंबर 2 आप ये कर सकते हो कि जिसका आपने इफ़ेक्ट आइसोलेट करना है उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स पे एक रिग्रेशन रन कर लो, ठीक है, एंड सेव द रेजिडुअल्स। दिस रेजिडुअल विल बी पार्ट ऑफ y अनएक्सप्लेन्ड बाय x2, x3 एंड x4, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो लेफ्ट ओवर वेरिएबल है दैट इज़ x1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू बीटा 1, रिग्रेस x1 ऑन x2, x3 एंड x4, सेव द रेजिडुअल्स, एंड देन थर्ड स्टेप में y टिल्डा का x1 पे, एंड यू विल गेट बीटा 1, ठीक है, द एस्टिमेटेड स्लो पैरामीटर। सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन एस्टिमेट्स फॉर बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये वाला जो राइट हैंड साइड में रिसर्च पेपर का आइडिया है इसको डिटेल में ये प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। आई एम जस्ट पॉजिंग फॉर अ मिनट, यू कैन सी द आइडिया and note down the steps and appreciate the method, as well as how this method, which started with the detrending of a series, detrending of yt and xt, and then running that regression, came out to help us while interpreting these beta 1 and beta 2 with partial effects, ठीक है। That's it and thank you.
ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिखा है एट दैट टाइम दैट दे वर डिस्कवरिंग। ठीक है, ये सेंटेंस आप नोट कर लेना, और ये काफ़ी एक डीपर लेवल पे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ रियली अ हेल्पफुल थ्योरम। थैंक्स अ लॉट, दैट्स इट फॉर द वीडियो।